बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड भाई हेल्थ इशू जिसको आज हम एड्रेस करने जा रहे हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है ये, इसकी अगर हम इंफोग्राम डिस्कस करें तो होल स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड हियर। भाई जितनी भी हम फूड आइटम्स खाते हैं इनके अंदर डिफरेंट टाइप की शुगर्स पाई जाती हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है वो हमें एडेड शुगर्स की वजह से है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। लेकिन नेचुरल फूड्स के अंदर एक शुगर ऐसी है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं और ये डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाई जाती है। दूध या दूध से बनी हुई चीजों के अंदर ये वाफर मिकदार में पाई जाती है। Normal individual, they have the ability to digest this with the help of lactase enzyme present in the small intestine. But in some individuals, they have some genetic problems. Either they do not have the lactase present in the body or the quantity is not sufficient to digest the lactose available from the food. So ultimately, this results in bloating, distension, nausea, and sometimes diarrhea when these people consume dairy products. So what is the solution? There are two options. Either we can add lactase enzyme in these preparations, so both lactose as well as lactase will be available from the external sources. And the second option is to remove the lactose from these products. So lactose free dairy products can also be available for those people which do not have the ability to tolerate lactose. तो नेक्स्ट हम भाई इसकी बात करते हैं, इसको ज्यादा डिटेल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं और इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जो जनरल टिप्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे ताकि ये इंडिविजुअल भी नॉर्मल फूड्स को एंजॉय कर सकें। Some people face difficulty in digesting milk and milk products, and this is basically due to inavailability to hydrolyze the lactose, which is known as milk sugar. Either they are incapable to synthesize lactase or they synthesize it inadequately. So ultimately, they do not have the ability to tolerate lactose. So we can see here, this is the normal lactose digestion. Lactose is broken down by lactase into glucose and galactase. Whereas in case of lactose intolerant individuals, they do not have the lactase present. So ultimately this sugar will move further towards the colon part and their residential bacteria will ferment this sugar and they will produce some nutrients as well as some acids, some gases, and some toxic compounds, which may result in bloating, gas production, flatulence, distension of body, and some diarrheal problems. So when ingest more lactose in the milk and derivatives, they bacteria in the colon, they convert it into lactic acid and carbon dioxide. So lactose transits through the small intestine into undigested intestine, undigested due to insufficient lactase activity on the intestinal surface. Undigested lactose transits through the large intestine where unadapted colonic bacteria attempts to ferment this lactose. Lactose fermentation results in large quantities of gas, causing flatulence, distension, and acute diarrhea.
एक्यूट है जो शॉर्ट टर्म भी होता है। तो ये रिजल्टेंटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, मीथेन भी प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोजन भी डेवलप होगी। और कितना टाइम लगता है इसमें? फूड खाने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। Sometimes there may be development of rashes on the skins, or there will be foggy brain, abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, bloating, flatulence. So these are common symptoms which may differ in individuals depending upon the severity of the issue. So degree of lactose intolerance varies from person to person. Babies born with the capability of lactase formation, but they lose this capability in the early childhood. Body produces less lactase after infancy. So एक तो ये रीजन होगी ना भाई कि पहले था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये एबिलिटी खत्म हो गई। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन कम प्रोड्यूस हो रहा है। So ultimately, this disease is more common in Black Africans and affects more Asians. और स्पेशली हम चाइना या जापानीज की बात करें तो वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्जिस्ट करती है। कंपैरेटिवली जो यूरोपियन है उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत कम है। And globally estimated 75% of the world adult population is experiencing some or all of the symptoms of lactose intolerance. यानी हर तीन बंदे भाई, 4 में से 3 बंदे जो है ना उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम रहता है। और ये इशू इसलिए भी है कि हर बंदा जो है ना वो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना चाहता है क्योंकि इनके अंदर 10 से ज्यादा टाइप के जो है वाइटल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसमें क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम भी शामिल है। So this map is showing the global prevalence of lactose intolerance. You can see the severity from this scale range from 0 to 100, and the places with dark red color, they are showing the 100% preferences. अब इस मैप को जब मैं आपके साथ दूसरा मैप शो करता हूँ तो फिर आप ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। This area ultimately China, North Korea, and this area in the form of Japan. You can understand from here. This is Japan, this is China, Korea. So it is more prevalent in Asian populations and some parts of African countries there right now. So these are some Namibia, Zimbabwe, South Africa. Okay. Tanzania. So these type of countries, they are also have high prevalence. All these countries are given here which have high prevalence of lactose intolerance. Infants born with lactase deficiency unable to digest milk, and for such children lactase-free milk is available. Sorry, lactose-free milk is available, but it will be costly. So adults advised to consume small amounts of milk along with other foods to determine the degree of tolerance. Those suffering from lactose intolerance can easily digest other dairy products like fermented products including yogurt and cheese. There are some tips for living with lactose intolerance. Enjoy milk on a full stomach means we should not consume milk, we should not drink milk with empty stomach. खाना खाने के बाद दूध पिएंगे तो प्रॉब्लम कम आएगी। इसके अलावा fermented products, especially yogurt and some type of cheese, they have less lactose content because these products have more culture, जिनको हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होंगे जो इनको हैंडल कर सकते हैं। बटर इज नेचुरली लो इन लैक्टोज and use a supplement, different type of supplements like lactate, fast act
lactose free milk, they are available. These can be used for individuals suffering from this issue. So individuals can enjoy even dairy products by taking 3 servings of dairy foods every day. Just they will have to uh, act on these some guidelines, like they should try to build tolerance, and this can be built by starting from a small amount of dairy foods and slowly increasing its levels within few weeks. तो थोड़े से शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा क्वांटिटी खाने के भी काबिल हो जाएंगे. Then try lactose free products. Don't drink milk on empty stomach. Eat dairy foods with other foods to allow the body more time to digest to lactose. क्योंकि इनके अंदर लैक्टेज की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो फिर लैक्टोज भी अगर क्वांटिटी में आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो फिर अल्टीमेटली बॉडी कैन हैंडल दिस. Some fermented products like cheese and yogurt, these can be good option because they have some good quality bacteria which have the ability to break down and digest the lactose. We can also use lactase enzyme in various preparations. Like these are available in supplements form, these can be available in pills forms from the drug stores, and we can take with us and use along with first sip or bite of dairy food. So again, these things are mentioned here. We should limit the amount of milk and milk products, and we can substitute or we can go for alternatives, and we can also use products having lactase in the form of pills, in the form of supplements, and we can eat yogurt with live and active cultures. How we will diagnose the lactose intolerance? There are some laboratory tests, for example, lactose tolerance test, uh, hydrogen breath test, and stool acidity test. So these are some common methods which are used to verify the existence of lactose intolerance. So this was all about the lactose intolerance, and now we will go for another health issue which is known as overweight and obesity. Overweight is basically major contributor to reduced life expectancy. और ये प्रॉब्लम कहाँ पे ज्यादा भी डेवलपिंग कंट्रीज में भी इमर्ज होना शुरू हो गया, लेकिन अराइज कहाँ से हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के अंदर, जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है वो पहले इंप्रूव कर गई थी. लाइफस्टाइल लोगों का जो है वो बिजी हो गया, एंड दे डू नॉट हैव टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी. लाइफस्टाइल चेंज की वजह से अल्टीमेटली वहाँ पे और रेडी टू यूज, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, जितनी भी कह लें कि प्रोसेस फूड है वो वहाँ पे उनकी फरावानी हो गई, तो अल्टीमेटली दे हैव मोर प्रॉब्लम्स ऑफ overweight and obesity. However, it is also linked with the development of coronary heart diseases, diabetes, gallbladder diseases, hypertension, respiratory ailments, and certain forms of cancer. तो जितना भी भाई कोई इंडिविजुअल ओवरवेट होगा, ये बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. इनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. एक्सेसिव वेट आल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ आर्थराइटिस. यानी जॉइंट्स जो है ना वो प्रॉब्लम कर जाएंगे. तो बेसिकली जब भी हम एक्स्ट्रा वेट को कैरी करते फिरेंगे तो ये किसी वक्त में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. लो बैक पेन एंड न्यूमरस अदर painful conditions may arise. Overweight is basically a subjective term and depends upon the body structure. तो किसी का स्मॉल फ्रेम है, किसी का मीडियम फ्रेम है बॉडी का, या किसी का लार्ज फ्रेम है, इस फैक्टर को भी देखना होगा. हम हर इंडिविजुअल को उसके वजन की बेस पे ओवरवेट नहीं कह सकते. So we will have to see the height and weight charts which can give the ideal weight of individual for
given height and frame size. तो जब किसी का आइडियल वेट का हमें पता चल जाएगा तो फिर उसके ऊपर 20%, 30% increase in weight, it will reflect the overweight. So this is the BMI classification. We just need the height in meter squares and weight in kg, and by using this ratio we can have these values. If the value is less than 18.5, the individual is declared as underweight, and the range for normal weight is up to 24.9. Similarly, individuals with more than 30 BMI, they are different type of obesities. They have different classes of obesities. These charts can be used to see our ideal weight. So weight for women and weight for men. Especially you can see the difference in case of women. 2 inches are included due to heels, or in case of men, almost 1 inch is included from the shoes, heel from the shoes. For example, if individual have 5 feet and 6 inch height and its body frame is small, then the ideal body weight can be between 114 to 123 pounds. And for the same height, but with the large frame, we can see higher values. The weight can be up to 146 pounds. And if we talk about the female, sorry, this was regarding female. In case of male, you can see here. In case of small frame, the value can be 120 to 133. So this is because they have more muscular mass and ultimately they have more weight. और इस केस में अगर हम देखें तो लार्ज फ्रेम का जो इंडिविजुअल है इसका वजन 156 पाउंड्स तक हो सकता है, और ये एज यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या रखा गया 25. तो हाइट एंड फ्रेम एजेस 25 एंड अबव, ये 25 से अबव एज है भाई सबकी. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी हाइट और इनके वेट की वजह से डिफरेंसेस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं. ये एक और वे है भाई, ऑलमोस्ट उसी चीज को रिफ्लेक्ट किया गया है. वैल्यूज थोड़ी बहुत डिफर करती हैं. Wearing shoes with 1 inch heel and indoor clothing with weigh 3 pounds. ये भाई नॉर्मली हम भी बाज दफा जब अपना वजन करते हैं तो हम शूज नहीं उतारते, तो और हाइट भी इसी तरह मेजर कर लेते हैं. तो ऑलमोस्ट इन केस ऑफ मेल 1 inch heel and in case of female 2 inch heel, and in case of indoor clothing जो भी पहना होगा स्टाफ वो तकरीबन 3 पाउंड के करीब जो है वो हो सकता है. इसकी बेस पे जो है ना ये वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट की गई. तो आइडियल वेट जो है एज 18 टू 34 और इसी तरह फिर आगे 35 से अबव अगर देखा जाए, और उनकी हाइट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे दी गई हैं. तो नॉर्मल बॉडी वेट के हिसाब से, सॉरी नॉर्मल बीएमआई के हिसाब से इनका जो आइडियल वेट है वो यहाँ पे दिया गया, यानी 90 टू 120 वेट इन पाउंड, और हाइट कितनी होगी 4.10 इंचेस. और इनके लिए आइडियल जो है वो वेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 90 से 120 के रेंज में. यहाँ पे आपको वैल्यूज जो है वो अब केजी के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे. जैसे हमारे यहाँ पे किलोग्राम और हाइट जो है वो फीट और इंचेस में मेजर की जाती है. The same example can be seen right from here. If someone height is 5 feet and 6 inches, the ideal weight can be 54 to 60 if the body frame is small, and it can be up to 72 kg if the body frame is a large one. These are also similar values. अब हम आइडियल बॉडी वेट को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो भाई इसके लिए अगेन डिफरेंट टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं.
जिनकी मदद से ये देखें यहाँ पे मीडियम और स्पेशली तीनों फ्रेम यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। और वुमेन के लिए ये वाला फार्मूला है और मेन के लिए ये वाला फार्मूला एग्जिस्ट करता है। सो 100 pounds multiply by 45.5 kg for the first 5 feet, जो कि 152 सेंटीमीटर हाइट बनती है, प्लस 5 pounds फॉर ईच एडिशनल इंचेस। और फिर जितनी किसी की हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, 5 फीट के बाद 5.1 इंचेस अगर हम कह लेते हैं, तो फिर उसी हिसाब से जो है वो वेट जो है उसमें एडिशन होता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह स्मॉल के लिए 10% और लार्ज के लिए 10%। तो ये मीडियम था ना भाई, तो मीडियम का मतलब दरमियाना है। स्मॉल के लिए 10 को 10% सब्ट्रैक्ट कर दें और लार्ज के लिए 10% जो है वो ऐड कर दें। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैलकुलेटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको यूटिलाइज करके हम डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशंस इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आइडियल वेट जितना आ जाएगा किसी का, उसके अंदर देखें कि उसका 15 to 20% कितना बनता है। तो अगर उसका 15 to 20% उसके आइडियल वेट से ज्यादा है, तो उस इंडिविजुअल को हम ओवरवेट कह सकते हैं। ओबेसिटी is basically the abnormal accumulation of adipose tissues throughout the body। लेकिन ये डोमिनेट करती है भाई, पीयर शेप भी होती है, एप्पल शेप भी होती है, और एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो हिप एरियाज में ज्यादा डोमिनेट करते हैं। इट इज लिंक्ड विद द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट इन द बॉडी। बॉडी रिक्वायर्स मिनिमल अमाउंट ऑफ फैट फॉर इंसुलेशन एंड कुशनिंग बिटवीन पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड वाइटल ऑर्गन्स। तो फैट के बगैर भी गुजारा नहीं है, तो कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि ये बॉडी को इंसुलेट कर सके, हीट के लॉसेस को रोक सके और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और कुशनिंग इफेक्ट दे सके। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स को एक मिनिमम बॉडी फैट की रिक्वायरमेंट है। अब ये डिफर करती है मेल और फीमेल के अंदर। तो मैन बॉडी शुड कंटेन 11 to 15% ऑफ द टोटल बॉडी फैट, यानी बॉडी की कंपोजिशन देखें तो उसमें 11 to 15% जो वो बॉडी फैट होनी चाहिए, और 3 से 4% से नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट विच कैन बी प्रेजेंट इन men। Men are considered obese if his total body fat exceeds 20% of the body mass। अगर हम फैट की मेजरमेंट करें और वो 20% से ज्यादा निकले, ठीक है, लीन बॉडी मास जो है वो 80% से कम हो, तो अल्टीमेटली हम उस इंडिविजुअल को ओबीज कह सकते हैं। इसी तरह वुमेन की बात करें तो उनके अंदर फैट का लेवल कंपैरेटिवली हायर साइड पे आ जाता है। एटलीस्ट देयर फैट शुड बी बिटवीन 18 to 20। तो मैन के लिए कितनी थी भाई? 11 to 15, और वुमेन के लिए कितनी है? 18 to 20। If exceeds 30%, which was 20% in case of male, then woman will be declared as obese। And what is the will be the minimum amount of fat required by female? It is about below 8%। It may result in amenorrhea। एमोन्यूरिया भाई अगर प्रॉब्लम हो जाएगी उन फीमेल के अंदर, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सप्रेस हो जाएगा या एब्सेंस हो जाएगा, जिनके अंदर फैट कंटेंट इससे भी नीचे लेवल पे चला जाए। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट required by female for normal physiological functions। However, too much or too little fat both are potentially harmful। There are several methods used for determining amount of fat in the body। और इनमें से कुछ के नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं। These can be pinch test, hydrostatic weighing, soft tissues जी, और रोंटेंजेनोग्राम्स, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एटसेट्रा। पिंच टेस्ट भाई बड़ा सिंपल है, आपके सामने ये मेथड दिया गया है। इसमें आपकी एक इंडेक्स फिंगर चाहिए और थंब चाहिए, और इनके थ्रू स्किन जो है ना उसको एक पिंच लेना है उसका, और ये चीज ध्यान में रहे कि उसमें नीचे मस्कुलर लेयर्स जो है वो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। इफ डिस्टेंस
our size of pinch appears to be thicker than 1 inch. अगर 1 इंच से ज्यादा ये thickness बन जाए, then we can declare overfat. And we can also use different type of vernier calipers to have the same message. इसके अलावा अंडर वाटर वेइंग टेक्निक जो है वो भी यूज की जाती है और इससे भी बॉडी की डेंसिटी जो है उसको मेजर करने की कोशिश की जाती है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हम फैट फ्री और फैट मैस का जो है वो आइडिया हो जाता है। नॉर्मली इस टेक्निक में इंडिविजुअल जो है उसको एक ये फिल्ड कंटेनर होगा, नॉन वॉल्यूम जो है इसका वाटर का होगा इसके अंदर, और जब इंडिविजुअल को इसके अंदर चंद सेकंड्स के लिए मर्ज किया जाता है और 4 से 5 बार जो है ये प्रैक्टिस जो है वो रिपीट की जाती है। सो अल्टीमेटली द वॉल्यूम रिप्लेस्ड, यानी जब इंडिविजुअल इसके अंदर गया और इसमें से जो पानी जो है वो बाहर निकल आया है, ठीक है। सो densities of lean and fat mass are known and these are known from the dispersed water, वहां से हम इसको मेजर कर लेते हैं। and compare out of water and underwater weighing। अब इसका जो मॉडर्न मेथड इस वक्त अवेलेबल है, दिस इज द बॉड पॉड मेथड। बॉड पॉड मेथड जो है ये सिस्टम इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सारी बॉडी जो है उसकी डेंसिटी को देखा जाता है और उससे फिर हम बल्कि डायरेक्टली इसमें सॉफ्टवेयर जो है इसके साथ अटैच हैं, जिनसे बॉडी की कंपोजिशन फैट की फॉर्म में और फैट फ्री फॉर्म में अपीयर हो जाती है। और बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन वी हैव द ऑप्शन। In case of adults, this is known as bod pot, and in case of kids, it is known as pea pot. So this is the next variant used for the kids. Pea pot. This is the apparatus just like this one. A full test requires only 5 minutes and provides highly accurate, safe, comfortable, and fast test results. तो ये भाई इस तरह का एक क्लोज्ड चैम्बर है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है ये और मेथडोलॉजी जो है वो इस डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे शो कर दी गई। बच्चों के लिए ये वाला वेरिएंट अवेलेबल है। तो जब हम डाइट क्लिनिक की बात करते हैं ना, हम कहते हैं न्यूट्रिशन क्लिनिक्स होने चाहिए। वहाँ पे अगर हम इस तरह के मॉडर्न टूल्स जो है वो अगर अवेलेबल कर लेते हैं तो लोगों का जो है ना ट्रस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम मियरली वेइंग मशीन और एक मेजरिंग टेप जो है उसके थ्रू ही सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो लोग समझते हैं कि ये डिसिप्लिन जो है वो बड़ा सादा सा है, लेकिन इसके अंदर एडवांस से एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्नोलॉजीज जो है वो वक्त के साथ साथ ऐड हो रही हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो ये दोनों मेथड जो है वो सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। एडीपी जिसको हम बोलते हैं एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड, एंड यूडब्ल्यूडब्ल्यू मींस अंडर वाटर वेइंग। एंड ऑलमोस्ट 17% जो इस वक्त प्रोफेशनल्स हैं वो एडीपी को यूज कर रहे हैं और 10% के करीब ऐसे हैं कि जो स्टिल अंडर वाटर वेइंग जो है उसको प्रेफर करते हैं। How it works, basically athletes spends a few minutes in a small enclosed chamber, जिसको हमने बॉड पॉड का नाम दिया, or is submerged and weigh underwater for 3 to 10 seconds and repeated 3 to 5 times. So this is underwater submerging and this is EDP. The amount of volume displacement, in this case it will be air and in this case it will be water. Is measured, ठीक है। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जब हमारे पास आ जाएगी और वेट हमारे पास ऑलरेडी होगा तो देन we can determine the density. An equation is then used to estimate the body composition. अब इनके पॉजिटिव नेगेटिव्स जो वो एग्जिस्ट करते हैं। ये मेथड्स एक्यूरेट तो ज्यादा हैं लेकिन कॉस्टली भी उतनी है। तो इसके अंदर जनरली वेरी रिलायबल, स्पेशली वेयर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर इज अडॉप्टेड, एक्सपीरियंस टेक्नीशियन इज रिक्वायर्ड। तो मशीन भी कॉस्टली और करने वाला इंडिविजुअल जो उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। लो सब्जेक्ट कंफर्ट
ठीक है, स्पेशली जब अंडर वाटर मीन की जाती है तो वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोफोबिया का चांस हो, कुछ लोगों को खौफ होता है पानी के अंदर जाने का। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड्स यूज्ड इन द रिसर्च लैब्स। तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। फिर इसी तरह क्लॉथिंग, हेयर, टेम्परेचर, हाइड्रेशन स्टेटस कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी। Large body of the data collection in athletes that can be used as a reference। तो स्टडीज, क्विक स्टडीज के लिए ज्यादा डाटा अगर हमें चाहिए तो फिर ये मेथड्स हैं वो ज्यादा बेहतर वर्क करते हैं। इनके लिए हमें ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और स्पेशली उन नॉट सपोर्टेड इन स्ट्रेंथ ट्रेन्ड एथलीट्स, those with low bone density are athletes of certain ethnicity। तो अभी कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के जहाँ पे इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो इतनी स्टेब्लिश्ड नहीं हो सकी। डज नॉट सपोर्ट रीजनल बॉडी कंपोजिशनल असेसमेंट। तो अभी चूंकि ये नए मेथड हैं तो इसलिए ये ग्लोबल लेवल पे इनके हमें स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बाज दफा अवेलेबल नहीं होते। एथनिसिटी के इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है भाई जिसके अंदर इम्पीडेंस का प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट करता है, बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस। यानी एक हल्की सी करंट जो है वो बॉडी में से उसको अलाउ किया जाता है और अल्टीमेटली इसका प्रिंसिपल क्या है कि मसल्स जो है ना इनके अंदर वाटर लेवल ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली दे हैव लेस रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टर का काम करते हैं, बेहतर कंडक्टर का काम करते हैं और अल्टीमेटली करंट जो है वो इजिली वहां से गुजर जाएगी, उसमें कम जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होगी। जबकि फैट जो है उसके अंदर चूंकि वाटर लेवल कम होता है तो ये इंसुलेटर का काम करती है और इसमें करंट को गुजरने में प्रॉब्लम आती है। तो मोर द फैट कंटेंट मोर विल बी द रेजिस्टेंस। इस तरह का ये हमारे पास अवेलेबल है भाई, दोनों वेरिएंट अवेलेबल है। यहाँ पे वेट भी हो जाता है साथ, जब आप यहाँ पे पाँव रखते हैं तो ये लैक्टोज पाँव के साथ भी टच करते हैं और हाथ के साथ भी टच करेंगे। और ये जो है वो सिंपल जो है ना इसमें लैक्टोज जो है वो बेसिकली हैंड बेस्ड जो है वो ये मेथड है, ये भी ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी के अंदर फॉल। तो इसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल थे तो इसमें दोनों का कम्बिनेशन आ गया। अब काजेस क्या है भाई इस ओबेसिटी की? ये ओबेसिटी जो है वो जेनेटिकली भी हो सकती है, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स अगर हम देखें तो नॉर्मली दे हैव मोर देन 25 टू 30 बिलियन फैट सेल्स, लेकिन जब ये ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो दे हैव मोर देन 200 बिलियन फैट सेल्स। तो किसी के अंदर अगर ज्यादा नंबर में फैट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं सो अल्टीमेटली दे विल बी मोर obese। Size of fat cells increases or decreases depending upon the dietary habits। अब उन सेल्स को कितने साइज तक लेके जाना ये डिपेंड करेगा ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। तो अगर कोई खाना पीना हम ज्यादा रखते हैं और उसमें फैट का प्रोपोर्शन ज्यादा है या स्टार्ची फूड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो अल्टीमेटली फैटी होने के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड रीजन क्या हो सकती है? कुछ लोगों को थायराइडाइज अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स का प्रॉब्लम होता है। उनके थायरॉक्सिन जो है वो इतना ज्यादा ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता और ये हार्मोन क्या करता है, ये बहुत सारे काम बॉडी में परफॉर्म करता है जिनमें से मेटाबॉलिज्म भी शामिल है। तो जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो बॉडी बर्न नहीं कर सकेगी और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो बॉडी में डिपॉजिट होने की वजह से तेजी से जो है वो वेट गेन होगा। इसके अलावा तीसरा जो प्रॉब्लम है वो फीमेल के अंदर स्पेशली जब वो मिनोपॉज वाली स्टेज पे पहुंचती हैं तो वहां पे भी उनका वेट जो है वो तेजी से बढ़ता है। और वेट बढ़ने से मुराद क्या है कि उनके अंदर फैट की कमोलेशन जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बीएमआर जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो डिक्रीज करता है और एवरी इंडिविजुअल हैज टू बिकम ओवरवेट एंड ओबीज आफ्टर द एज ऑफ 25। और ये स्पेशली कब होता है कि जब हम खाना पीना अपना जो है उसको मॉडिफाई नहीं करते, अपनी एक्टिविटी जो है उसको, लेबर सेविंग डिवाइसेस जब से अवेलेबल हो गई हैं, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल जो है वो कम से कम होता जा रहा है। फूड हम जब से ऐसी खानी शुरू कर दी है जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है और जो ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में है, तो फैटी फूड का ज्यादा होना, हाई कैलोरीज का होना, एडेड शुगर्स का ज्यादा होना, ये ऑटोमेटिकली जो है वो वेट गेन की तरफ लेके जाता है।
So there is a strong relationship between activity level and the calories intake. Sedentary people can easily consume food containing 3000 kilocalories or more in a day, which is equal to about 400 gram body fat. अब कहता है कि पता भी नहीं चलता, आम इंडिविजुअल जो कि लेस एक्टिव है, कम से कम 3000 तक किलो कैलोरीज तक एनर्जी जो है वो डेली खा लेता है, जो कि 400 ग्राम फैट के बराबर हो सकती है. To get rid of this fat, one requires walking at least 4.5 किलोमीटर पर आवर for 80 minutes. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसको 80 मिनट तक जो है वो बंदा अगर वॉक करे डेली, तो फिर इतनी जो फैट है उसको बर्न किया जा सकता है. सो इट इज इजी टू गेन वेट देन टू लूज इट. अब जब हम वेट लॉस प्रोग्राम की बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट जो वेट लॉस प्रोग्राम है या प्लान है वो डाइट, एक्सरसाइज और बिहेवियर तीनों का कॉम्बिनेशन है. तो डाइट में क्या होगा कि हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फाइबर ज्यादा हो, जिसमें विटामिन मिनरल ज्यादा हो, कैलोरीज का लेवल कम हो. तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. इसके अलावा होल ग्रेन्स, दे आर द बेस्ट सोल्यूशन. होल लेग्यूम्स, लीन मीट, फिश, पोल्ट्री, स्किम मिल्क. ठीक है, तो फैट का एलिमेंट कम करें, प्रोटीन का एलिमेंट जो है उसको हम ज्यादा कर सकते हैं, और फाइबर रिच फूड्स जो है उनको ज्यादा यूज कर सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए. इसी तरह वेट स्पेशली जब हमने लूज करना है तो उस वक्त हमें अपनी पर्सनैलिटी, प्रायोरिटीज, लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों को ज़हन में रखना चाहिए. हाईली रिफाइंड फूड्स को जो है वो कम से कम यूज करें. एंड नॉर्मल डाइट विद एनर्जी वैल्यू रिड्यूस टू 1500, 1200 एंड 800 कैलोरीज कैन बी रिकमेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन. तो जितनी कैलोरीज आप यहाँ से कम करेंगे बॉडी में से, उतनी कैलोरीज जो है वो बॉडी में से स्नैच की जाएंगी, क्योंकि बीएमआर जो हमारा, उसको तो हम यकदम नहीं स्लो कर सकते. तो एक्स्ट्रा कैलोरीज विल बी स्नैच फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी स्टोर्स. डिपोर्ट फैट जो वहां से उनको स्नैच किया जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल लूज वेट. अब ये वेट जब आपने लूज करना है तो इसमें बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. प्रोटीन लेवल शुड बी 60 to 100 grams per day. We should limit the fats to reduce the calories. We can also use vitamins and mineral tablets, because when we are going to eliminate some foods, definitely there are chances of the deficiency of vitamins and minerals. So ultimately we can use these in the form of supplements. This is the best practice that we should use small meals with more frequency in a day. ठीक है, खाना जो है ना जब हम 3 बार खाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर साइड पे रहेगा. ड्रिंक वाटर बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ईच मील, बिफोर रिटायरिंग एट नाइट एंड फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द डे. ये हम पहले काफी पढ़ चुके हैं भाई, वाटर जो है वो कब कब हमें पीना चाहिए. लेकिन स्पेशली खाना खाने से पहले अगर हम पानी पी लेते हैं तो अल्टीमेटली इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द स्टोमक एंड अल्टीमेटली वी विल कंज्यूम लेस फूड सब्सिक्वेंटली. जूसेस नेचुरल पीने चाहिए, अदरवाइज फ्रूट्स पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, फिर नेचुरल जूसेस होने चाहिए, और सिंथेटिक को मिनिमम टू मिनिमम यूज करना चाहिए. एंड डिसकंटिन्यू ईटिंग बिफोर द फील फुल. सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. और वेट जो है वो कितना करना चाहिए लूज? 2 से 3 kg पर मंथ के हिसाब से. इससे ज्यादा सीवीएटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसके नुकसानात ज्यादा हो सकते हैं. So losing weight requires hard work and patience.